I am going to explain the rational number for class 8. Then first is the definition of rational number. What is rational number? The number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then it is called a rational number. This is the definition of rational number. The number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Here is an example, minus 2 by 3. We can see minus 2 and 3 both are integers and there is not equal to 0. Denominator is not equal to 0. Means Q is not equal to 0. This is in the form of P by Q. If you are getting that minus 2 by 3 in the form of P by Q and Q is not equal to 0, so it is called rational number. You can say that 2 by minus 2 by 3 is rational number. Also 0 by 4 will be a rational number, but 4 by 0 is not a rational number. This is the condition that Q should not be equal to 0. तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल हो सकता है, कोई भी नंबर आप लिखते हो रेशनल हो सकता है, बट उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो 4 by 0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. A standard form of rational number. If a rational number is in its simplest form. Students, simplest form means there is no any common factor between P and Q other than 1. 1 के अलावा P और Q में कोई भी दूसरा common factor नहीं होना चाहिए. This is the simplest form. Simplest form. If a rational number is in its simplest form and the denominator should be positive. एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी हो सकता है जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. एक 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि रेशनल नंबर होगा नहीं. 0 अगर आप कर दोगे तो रेशनल नंबर हो नहीं सकता है. 0 के अलावा अगर वो नेगेटिव है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता. रेशनल नंबर तो होता है बट वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है. नेक्स्ट इज, you can take an example. 2 by minus 4 will be changed in the rational form. This is not in the standard form. Will be changed in the standard form of the rational number like that. माइनस को हम लोग यहां पर रिप्लेस करेंगे -2 by 4 और इसको कैंसिल करने के बाद, इसको घटाने के बाद -1 by q आएगा और ये जो होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा. ऑन द नंबर लाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग
rational numbers representing rational numbers on the number line. For representing the rational number on the number line, there is a rule, and what is the rule you can understand like this. As example, we have to represent 1 by 2 and minus 1 by 2. 1 by 2, this is 1 by 2 and minus 1 by 2 on the number line. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सबसे पहले नंबर रियल नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और आपको मालूम है इस पे इंटीजर्स को जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा और राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. देयर आल्सो दैट साइड -1 -2 -3 will be there and this will be goes to infinity also. ये कभी खत्म नहीं होता है, न इधर खत्म होगा न उधर खत्म होगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स को हम अरेंज करते हैं और इस इंटीजर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो 1 by 2 को इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 by 2 में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है. तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं और you have a trick, you should have a trick, and any number whose denominator is greater than numerator, in another form you can say if numerator is less than its denominator, like a proper fraction you have studied already. अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर रेशनल नंबर है तो उस प्रॉपर रेशनल नंबर को आप केवल 0 और 1 अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में हम लोग सिचुएट कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं, या 0 और -1 के बीच में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके अलावा वो कहीं दूसरी जगह सिचुएट नहीं हो सकता है. तो 0 और 1 के बीच में ही केवल उसको सिचुएट करना है और 0 और -1 के बीच में ही करना है. तो 1 by 2 है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, और अगर -1 by 2 है तो 0 और -1 के बीच में आएगा. ये मैंने आपको ट्रिक बताया कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर then it should be situated only between 0 and 1. तो इसके लिए 1 by 2 को सिचुएट करने के लिए 0 और 1 के बीच में जितना डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेट करते हैं, डिनोमिनेशन उसका करते हैं, और 2 इक्वल पार्ट में डिनोमिनेट करते हैं. और 2 इक्वल पार्ट में 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट में डिनोमिनेट करने के लिए एक पॉइंट दे दिया जाएगा, और एक पॉइंट देंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो ये पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग 1 by 2 देख सकते हैं. दिस इज 1 by 2, दिस इज P1, एंड इन दिस क्वेश्चन -1 by 2 इज गिवन आल्सो. तो 0 और -1 के बीच में हो सकता है. इसमें भी डिनोमिनेटर आप देख सकते हो दोनों सेम, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. तो इसमें 0 और -1 के बीच में इसको सिचुएट करना है, और ये एक पॉइंट देते हैं और ये हो जाएगा -1 by 2. It should be P2, and this is your answer for this question. अगर दूसरा कोई एग्जांपल को लेते हैं as -8 by 3, -8 by 3, and its denominator is 3. Any problem? No. -8 by 3. Then draw a number line and put the values 0, the right side positive values 1, 2, 3, -1, -2, -3. -8 by 3 को इसमें सिचुएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हो तो ये मालूम चल जाता है कि ये नंबर है क्या. 3 2 जा 6, -2, 2 by 3, 3 2 जा 6, 2 8, 8 by 3 ऐसे होगा. तो ये मालूम चल जाएगा कि ये -2 और -3 के बीच में आने वाला नंबर है, -2 से लेस है
और -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है और -2 से लेस है, तो ये मालूम चल जाएगा कि -2 और -3 के बीच में आएगा। बट अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर इतना हम लोग चेंज नहीं करते, डायरेक्ट -8/3 करते हैं, तो नेगेटिव जितना पार्ट है उसमें आप 3 इक्वल पार्ट में सबको डिवाइड करेंगे, और 0 और -1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप 2 पॉइंट्स लेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if we are taking 2 points, this will be changed in the 3 equal parts, 1, 2 and 3. You can see there are 2 points there, and it will be changed in the 3 equal parts. This is the first part, second part and third part. Like this, you can change all the points given. So 0 -1 के बीच में और -1 और -2 के बीच में यहाँ भी आप 2 पॉइंट दे सकते हो, फिर यहाँ भी आप 2 पॉइंट दे सकते हो। शायद ये आ जाएगा -2 और -3 के बीच में, तो आ ही जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो इसको इरेज भी कर सकते हो, -8/3 से ही हो जाता। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा -1/3, -2/3, -3/3। This will be -4/3, -5/3, -6/3, -7/3 and there -8/3, and this will be the real value you have to find out. This is the answer. Okay. Finding a rational number between two given rational numbers. Two given rational numbers. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 9th क्लास में भी आपको देखना होगा। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। Then for this question, first point will be, if we have to find only one rational number, only one rational number, only one rational number. If there are two values x and y are given, x and y are given, two rational numbers x and y are given, therefore one rational number equals to 1/2 into x plus y. अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर उसके बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, 1/2 into x plus y करना है। एग्जाम्पल, if 1/2 and 1/3 are given and you have to find only one rational number between 1/2 and 1/3, then it should be one rational number equals to 1/2 into this plus this, 1/2 plus 1/3 equals to 1/2, 2 3 are 6. This is the LCM of 2 and 3. 2 3 are 6, 2 3 are 6, 3 multiplied by 1 plus. Find the sum of fraction yourself. 3 2 are 6, 2 1 are 2 equals to 1/2 into 3 2 added will be 5/6, 5/12. This is the answer. This is for only one rational number. Next, more than one rational number. If we have to get more than one rational number between two any given rational numbers, as for example, हम लोग को सबसे पहले एग्जांपल से समझना होगा, तब ये समझ में आएगा। As one question should be there. Question will be, find four rational numbers
between 1/3 and 1/2. 1/3 पहले इसलिए रहेगा कि 1/3 इज लेस देन 1/2, 1/2 इज ग्रेटर। तो 1/2 और 1/3 और 1/2 के बीच में अगर 4 ऐसा नंबर फाइंड करना है, इसके लिए फर्स्ट जो प्रोसेस है ये 1/2, 1/3 एंड 1/2 को लिखना और दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 3 and 2 will be 6. 3 to the 6 and 1/3 में 3 को एलसीएम में चेंज करना। This will be like that 2/6 और इसको चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक ही साइड में मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते। मैं दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट विल बी 1/2 और 1/2 में मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से अप्लाई करना पड़ेगा और 3/6 हो गया। अब आपको 2/6 और 3/6 के बीच में जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए और इसके लिए एलसीएम निकालते हैं और फिर उसको इक्वलाइज करने के बाद अब इसके बीच में तो कोई रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रही है कि आप फाइंड करेंगे, एक रेशनल नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम नंबर से एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं। तो जैसे 2/6 है, 2/6 है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 8/24। हम लोग हीट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको येस करेंगे फिर उसको चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स 12/24। तो 8 और 12 के बीच में कितना नंबर आएगा? 9, 10, 11। 3 आ रहा है 9, 10, 11। 9/24, 10/24 एंड 11/24 जो कि सूटेबल नहीं है और इसके लिए हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा और 4 से नहीं करके एक हम लोग इंक्रीज कर देंगे। सिंस इसके बीच में क्या मिल रहा है? 3 रेशनल नंबर मिल रहा है, हमको 4 चाहिए और 4 गेट करने के लिए इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 multiplied by 5 and 6 multiplied by 5 will be 2 5 are 10 and 6 5 are 30. There also 3 5 are 15 and 6 5 are 30. 6 5 are 30. So we can get 4 as numbers between 10 by 30 and 15 by 30. How? 11 by 30. First will be 11 by 30. Second will be 12 by 30. Third will be 13 by 30. And fourth will be 14 by 30. आप देख लीजिए इसके बीच में एकदम एक्यूरेट 4 ऐसे नंबर फाइंड होंगे। तो केवल मिनिमम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, न ज्यादा और न कम करेंगे तो निकलेगा ही नहीं और ज्यादा कर देंगे तो आ जाएगा बट वो सुटेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए मिनिमम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके हम लोग को ये 4 ऐसे नंबर फाइंड करना है। तो अभी के लिए इतना ही एंड फॉर मोर डिटेल्स we have to subscribe my channel. My channel's name is DP Uday Classes, and you have to press the bell icon also to get the new updates.